Very good morning, dear ones. Once again, we are meeting for the lectures of English language, and particularly, we are now currently focusing on the grammar part of it. I'm again hoping that you all are doing very well with the corona pandemic. And lastly, I can say about this, be precautious, take care. Before starting our lecture, let me introduce you to the title of today's lecture, and that is Parts of Speech. It's already written here. Parts of speech is a species of grammar which always have been there to make you confused. Yeah, I have seen people who are just struggling with conjunction and prepositions. So yeah, definitely there are a number of mischievous things behind that. But still, the process, the teaching process, the learning process, the concentration is one of the part of the hurdle of it. So let's make it very clear. Let's make it very simple as it is. It is, believe me, this is the simplest part of English language. Okay, this is just basics. I can say it's basics, and that is why we are just hitting this with a particular thought of process and particular thought of learning and teaching. So let's come. You might have heard about this, that there are parts of speeches and the numbers are 8. So when we think about this, I mean the parts of speeches, we just have to understand okay, what it is actually. I always tell people and students to know that okay, what we are actually learning. And for that matter, I have said okay, understanding a problem is solving half the problem. Okay, so just like this, what is parts of speech? So in a very simple tone, I can say that parts of speech is nothing but the species of a sentence. The species within the sentence. I can say almost in Hindi or Marathi we can say these are ये जातियां हैं शब्दों की. शब्द जितने होते हैं उनकी जातियां हैं, ज्ञातियां हैं. We can say like that. But sometimes it is like hurdle to understand, and that is why we are just focusing on the English part of it, that these are parts of speech. That means if there is a sentence, then one can be able to know what the sentence is telling by knowing the roots, and that is what parts of speech does here. इसीलिए ये जो शब्द की ज्ञातियाँ या जातियाँ हैं, इनको समझने के लिए first of all we should know the flow of or the process of parts of speech. So many a time it happens like if you suddenly visit conjunction first, some people may go for verb first. The traditional way of it, I think, is the best way to understand parts of speech, and that is firstly you have to visit noun, second you have to visit pronoun, just because they are interrelated, okay, and the chronology is very important, just because after that adjective comes. So now pronoun, adjective, then verb, then the interrelated part of it, that is adverb, and after adverb there is preposition, conjunction, and at last the peaceful thought, that is interjection. So going for that and studying about that, first of all we'll be getting introduced to a very famous part of English grammar, and that is parts of speech. Let's go for it. As we have mentioned, there are 8 types of parts of speech, and now we are just hitting the first one, and that is noun. I am again assuring this to you that it will be very delicately understandable unless and until you are just having your own notebook and pen or pencil with you. Go with me, have practice sessions with me, and you'll be finding it very easy and useful for you. Yeah, the first one is noun. Okay, what is noun? Very simply, people usually go for the jargons. I usually tell people that don't go for jargons.
Don't go for terminology, but unless and until you term something, you won't be able to understand. So for the people who are just habituated to that particular habit, to know the definition, then to pit pat it, then to just speak it or understand it, for them I'm just giving this. But usually people say, when they say about noun especially, that is, what is noun? It is a name of um, place, person. Here I just want to add one thing, that is into bracket you also write now. Why this is now, what it makes, like, leave it at all, because this is one of the part which is, adjacent to humans, and that is why we cannot, separate this. We'll be explaining this later. And place, a name of a place, person, or again highlight these three things: place, person, and an object. Go with me again: place, person, and object. But suddenly that one thought that comes to my mind is, but we will be talking about it next. Place, person, and object, it is saying about a very simple phenomena that says about three things. And if you count, particularly within your mind, have a chat with your family, that is there anything else apart of them? Place, person, and object? No, there is nothing like that. And that is why this is something, even an alien that can come into this object. So there is nothing. Multiverse, universe, deja vu theory, and all. Everything comes under this. These three things are enough to say everything that is existing. Yeah, even God is into this. Sorry, but this is it. So noun is particularly a name of a place, person, animals including, or an object. But furthermore, I just want to add one thing here. You don't have to remember the definition in my point of view. But definitely, if you're not handy with these things of things, I mean interactive classes and smart classes, so you can go with the definitions too. But I suggest that you ought to know only those 2-3 words, and you'll be able to crack everything. Okay. Now, place, person, and object, but plus what I think personally, what I thought personally is, sometimes and many a time it happens, like when we visit to a novel, then something is like imagination, and the places, the person, the objects, they are all out of nowhere they come, and that is why it is very hard to mention them as noun. So for them, I'm just mentioning one thing here. जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि also imaginative terms. Definitely. I mean, for example, I am reading a novel of anyone. I'm just taking the imaginative name that my life's journey. And within that, if I mention a ghost name, if I mention an island which doesn't exist, so what is that? How can we call it like a noun? Then there should be a process. Definitely, it is a noun. I'm not saying it is verb or something like, but the process should be in the definition. When you define something, you have to add that, and that is why I'm just saying or adding this particular genre to the gang. So place, obviously everybody knows about it. Person and object. पर imaginative terms, मतलब हमारी कल्पना भी अगर है तो उन कल्पनाओं को हम नाउन के अंदर जानेंगे. तो नाउन क्या है? कोई आकर बोलेगा आपने बोला प्लेस, तो हाँ भाई मुंबई बन गया. आप बाद में बोलेंगे पर्सन, तो मुंबा देवी बन गया.
फिर बोलेंगे ऑब्जेक्ट तो मैं बोलूँगा मेट्रो ट्रेन। इसीलिए ये जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी, उनके साथ इमेजिनेटिव टर्म्स ऐड करने का फ़ायदा ये है कि यू गेट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ नाउन just because I told you कि novels are so many and that is why they are very important to understand. Okay, so again, place, person and object. I have given you examples within that sentence. Again I am saying place anywhere on the earth, person कोई भी हो सकता है, including animal I am saying. ये जान के अचरज भी होगा कि कुछ कुत्ते आदमियों से ज़्यादा वेल्दी है, द सेम थिंग हैपन्स हियर कि इसीलिए उनका भी इंक्लूजन करना इम्पॉर्टेंट है टॉन्ट के हिसाब से। और हम सब लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं तो एनिमल तो उनको तो इंक्लूड करना चाहिए बिकॉज वी आर एक्चुअली एनिमल। रैशनल है वो बात अलग है। आगे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आप बोले, पेन, कैप, इंक बॉटल, दिस towel, this rubber, anything you can mention and that comes within object. Okay, very simply. And the last but not the least is imaginative terms. If I am reading a novel, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि ये नया वर्जन हम ऐड करने जा रहे हैं by my point of view। तो ये जो मेरा पॉइंट ऑफ वे है ये इस तरह से बात करेगा कि अगर मैं कहता हूँ कि हु लाला नाम का एक आदमी था, वो गाबाचा नाम के गांव में रहता था, तो ये डेफिनेटली दिस इज अ पॉइंट ऑफ लाफिंग, बट स्टिल अगर जो भी इमेजिनेटिव टर्म्स है, खास करके पूरा बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब थानोस कौन है? एक्चुअली देयर इज नो पर्सन, इट माइट बी, बट एक्चुअली आई एम सेइंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। थानोस नाम के कितने ही लोग भी होंगे, और अब तो होंगे उसकी वो मूवी देखने के बाद। इसीलिए आई एम जस्ट सेइंग कि दैट कैरेक्टर इज नॉट अवेलेबल। कैप्टन अमेरिका, ही इज नॉट देयर। कैप्टन मार्वल, शी इज नॉट देयर। आयरन मैन, ही इज नॉट देयर। The actors are there, but they're not real characters, and that is what makes point here that imaginative terms they all come within this. इसीलिए हम कह रहे हैं वकांडा की जय हो, तो that वकांडा comes within this। उसको नाउन कहेंगे, पर क्यों कहेंगे उसका रीजन हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे कि इमेजिनेटिव, काल्पनिक तथ्यों, काल्पनिक चरित्रों और काल्पनिक बातों को हम इसमें ऐड करेंगे। So this is what I can say about now. Now, definitely people usually go for the types, and that is important just to know। देखिए, आप जब इंग्लिश को जानने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर घुसेंगे, तो आगे जाने के बाद you don't find कि these types are very important just because कि you're just playing ना। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, पहले चलाएंगे तो 4 बार उतर के देखेंगे, 5 लोग तो पकड़ने को होते हैं कि भाई ये गिरना नहीं चाहिए। उसके बाद में there is one point कि आप खुद चलाते हैं, उसके बाद there is one point कि आप एक हाथ छोड़ के चलाते हो, उसके बाद there is one point कि आप दोनों हाथ छोड़ के चलाते हो। तो this is something, this is like playing, but at this initial stage you are just needing the types, and that is why we are going for that। तो हम rationally, बुद्धि को उपयोग करके हम ये कह रहे हैं कि हम टाइप्स के तरफ जाएंगे। अदरवाइज सिर्फ बुक्स में छापा है और बिना उसका लॉजिकल रीजन लगाए we cannot go for this। Okay, तो very simply there are so many types of nouns, and happens what के Indian atmosphere it is like कि आप अगर दुकान वाले के पास चले जाओगे और उनको बोलोगे कि चाचा हमें ज़रा इंग्लिश को पढ़ना है, 30 दिन में इंग्लिश पढ़ो। स्ट्रेंज isn't it? Leave it, but अगर हमने वो मांगा तो वो हमारे सामने 50 ऑप्शन रख देते हैं। उसमें कुछ बड़े हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ गए हैं, कुछ गुजरे हैं। तो ऐसे सब के सब जब आएंगे तो हर किसी को कुछ ना कुछ अलग करना है। आई सडनली डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आपको उसमें देखिए ये ऐड करने की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने किया, बट अदरवाइज इसको क्रॉस करना, उसको तो ट्रेडिशनल वे है। अब व्हील गोल है, उसको बदलने की कोशिश तो नहीं हुई ना आज तक। तो कुछ चीज़ें वी हैव टू एक्सेप्ट एज ट्रेडिशनल एज दे आर। Leave that. Again we are going for the types of noun or kinds of noun. We are just going for that. The very first one is proper noun. The second one is common noun.
third one, there is no actually sequence, but to understand it, in a chronological way, we are just making this. Otherwise, ये ही पहले आना चाहिए, doesn't matter. Okay? Proper noun, common noun, material noun. Believe me, there are so many things in types of the nouns. Just because they just want to add something new and they have made it a mess. Seriously. The fourth one, abstract noun, and the fifth one, there you go. Actually, when we hear about proper noun, common noun, these are very common things in this part of journey. But one should mention the correct phenomena, correct definition for this. Again, people get confused here. इसीलिए क्योंकि proper noun का कभी कोई किसी ने definition दिया नहीं और किसी बुक में दिया भी होगा. But suddenly अगर आप इतना बारीक या बहुत critical definition याद करने जाओगे, तो मुझे लगता है you will be leaving English very soon. I don't want to happen with you. ये इसलिए आपके साथ नहीं होना चाहिए. Just because के we ought to know that these are very very common things. Like proper noun, what is proper noun? The simple thing I can say about this, आपको ये समझना है कि proper noun मतलब दिया गया नाम या रखा गया नाम. इसीलिए अब किसने दिया that is not important, पर दिया गया और रखा गया नाम इतना दिमाग में रखो. प्रॉपर नाउन आपके जहन से जाएगा नहीं. वो समझने के लिए दिया गया नाम मतलब कौन सा, तो अगर जैसे कि किताबें, जैसे कि टीचर्स दे गिव यू एग्जांपल कि राणा है, रुचिका है, ये सब करेंगे, डेफिनेटली करेंगे. उसको तो पहले कॉमन नाउन को समझना पड़ेगा. कॉमन नाउन इज समथिंग जब इंसान को जब इंसान को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हम ही है जो अलग अलग भाषाओं में बातें करते हैं. There is no such language. I am saying about this process. ऐसे लैंग्वेज वो कभी नहीं पढ़ते हैं. उनका लैंग्वेज है, अलग है, प्रोग्रेस्ड है हमसे, क्योंकि सिर्फ गाँव के अंदर वो पूरे गाँव को बता देते हैं. काव बोलेंगे तो खाना है, काव बोलेंगे तो रोना है, काव बोलेंगे तो बीवी बुला रही है. तो इसलिए I said कि that is progressive language than us. But leave that part aside. इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि अगर प्रॉपर नाउन को समझना है तो कॉमन नाउन को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा. इसीलिए कॉमन नाउन क्या है कि इंसान ने जब से इजाद किया है अलग अलग भाषाओं का, उन भाषाओं में जो भी नाम है, जैसे कि अगर किसी ने मुझे पूछा, एक बार पूछा था एक स्टूडेंट ने कि हाथी को हाथी क्यों कहते हैं, तो जवाब जो भी है बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन सवाल कितना सही था कि हाथी को हाथी क्यों कहते हैं, पेंसिल को पेंसिल ही क्यों कहते हैं. डजेंट मैटर द बैरियर ऑफ लैंग्वेज हो. अगर मैं कहूँ कि हिंदी में ये है, मराठी में वो है, जो भी लैंग्वेज हो, पर जब भी ये लोगों के सामने आया है उनकी लैंग्वेज में, तो ये सवाल होना चाहिए कि हाथी को हाथी क्यों कहना. इसीलिए उसका एक ही जवाब है कि जब सबसे शुरुआत में जिसने भी हाथी को देखा होगा उसको तब लगा कि इसको हाथी कहना चाहिए, हो गया, दैट्स इट. क्योंकि इनिशिएटिव जो आपका स्टेप है उसको आप साइंस कह के नहीं छोड़ सकते, बट यस दैट इज अ प्रोसेस ऑफ साइंस. इसीलिए वो है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, जाने दीजिए, हम बहुत अंदर तक जा रहे हैं, बट दिस इज व्हाट वी आर जस्ट लर्निंग हियर. ओके, हर चीज को हम लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज व्हाई आई सेड कि व्हेन वी से कॉमन नाउन, जब हम कहते हैं कॉमन नाउन के बारे में या सामान्य नाम के बारे में, तो वो सब नाउन्स हैं जो हमें आसपास मिलेंगे जिनका नाम पहले ही किसी ने रखा है. तो वो दिया गया या रखा गया नाम है या नहीं है, वो है, पर वो काफ़ी अरसे पहले हुआ है. इसीलिए देखिए, वेरी सिंपल एग्जांपल आई कैन गिव, लाइक कि देयर इज अ गर्ल कॉल्ड रिया. ओके, अब रिया जी जो है, वो रिया जी को नाम जो लड़की है वो दिया गया है या नहीं दिया गया है, पर लड़की किसने नाम रखा. अब वो ढूंढने जाएंगे तो कितने ही पुराने काल में जाना पड़ेगा कि लड़की को सबसे पहले लड़की ही क्यों कहा, किसने कहा. दिस इज ऑल अबाउट रैशनल थिंकिंग. इसीलिए इसको छोड़ दो.
बाद में सोचो, घर पे जाके पूछो, साइंस के पास चले जाओ, लेट इट बी, हम सोचेंगे उसके बारे में बात। इसीलिए रिया जी जो है वो लड़की है, ये कॉमन चीज़ है, पर रिया का नाम, उस लड़की का नाम रिया है, वो स्पेशलिटी है। ओके, इसीलिए वो कभी दूसरे के पास नहीं जाएगा, वो नाम किसी और को नहीं दिया जाएगा, और ऐसा होगा तभी प्रॉपर नाउन, ये जो पढ़ाना है या फिर ये जो बोलना है, दैट इज रॉन्ग। इसीलिए प्रॉपर नाउन इज समथिंग जो आपको दिया गया या रखा गया नाम है। कॉमन नाउन वो है जो बहुत सालों से कॉमनली चलता आ रहा है। वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स आर देयर, इसीलिए हम इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं। उसके बाद में है मटेरियल नाउन, हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो ये भी क्लियर कर लेंगे। मटेरियल नाउन इज समथिंग which shows itself that this is a noun of material. Now what objects are coming into material? Material किसको कहना, क्या कहना, तो don't be confused. Many people getting confused between this common noun and material noun. अगर common noun है, मैंने कहा कि गद्दा पड़ा हुआ है, उसको material noun कहना या common noun कहना, तो obviously these are things, but don't get confused. मैंने जैसे बोला कि commonly जो बोला जाता है उसको हम वो करेंगे, कॉमनली जो फाउंड होता है उसको हम वो करेंगे, पर मटेरियल नाउन जब आएगा तो वी विल बी स्पेसिफिकली गोइंग फॉर मिनरल्स, वी विल बी स्पेसिफिकली गोइंग फॉर मेटल्स, नॉन मेटल्स, वी आर स्पेशली गोइंग फॉर मटेरियल थिंग्स, वी आर स्पेशली गोइंग फॉर गुड्स। इसीलिए जब सामग्री की बात आएगी, सामान की बात आएगी, वस्तुओं की बात आएगी, तब हम उसको कहेंगे कि ये पदार्थवाचक या धातुवाचक नाम है। इसीलिए उसको मराठी में, हिंदी में, संस्कृत में पदार्थवाचक या धातुवाचक नाम कहते हैं। इसीलिए मटेरियल नाउन इज समथिंग लाइक दैट। वी आर जस्ट गोना टेक द एग्जांपल्स, सो डोंट गेट bothered, okay, don't get tensed. We are just here to make it very simple. What we are doing, we are logically getting each and every types of noun. Okay, now the fourth one is that abstract noun. When people say about abstract, इट इज जस्ट लाइक सब्जेक्टिव। उसको अगर हिंदी या मराठी में कहना है तो हम कह सकते हैं कि वो भावना दिखाने वाली चीज़ें होती है। जब कोई कहता है एब्स्ट्रैक्ट, जब कोई कहता है कि दिस इज सब्जेक्टिव, ओके, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो वस्तुनिष्ठ और हृदयनिष्ठ जो चीज़ें हैं, तो हृदयनिष्ठ के बारे में जैसे कि हम सब्जेक्टिव कहेंगे उसको, और सेकेंडली वी कैन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो जहाँ जहाँ पे मेरी भावनाएं व्यक्त होने वाली। अब भावनाओं में क्या आएगा, दो चार भावनाएं हैं, खत्म, बराबर। इसीलिए हम कहते हैं कि मुझे गुस्सा आया, तो गुस्से को जब हम नाउन करेंगे तो उसका हो जाएगा एंग्री, ओके, पर सॉरी एंगर हो जाएगा, एंग्री करेंगे। वो कन्फ्यूजन जो है, जो अभी मेरे बोलने में भी हुआ, एंग्री एंड एंगर, हम कई दफ़े एडजेक्टिव को नाउन लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। इसीलिए व्हेन वी से लव, बहुत सारे लोगों को तो सबसे पहले शॉक लगता है कि अरे एग्जाम्पल में लव किसका है, लेट इट बी। तो लव जो है वो आपको बता रहा है नाउन के बारे में, वो आपको बताता है वर्ब के बारे में भी, बिकॉज खास करके लव हमारे वहाँ पे वर्ब ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए ठीक है, इट्स ओके। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंक्लूड करता है उस जैसे लफ्ज़ों को भी, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट मतलब फीलिंग्स ऑलवेज, इसीलिए भाववाचक नाम उसको कहते हैं। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि आपको ये सब चीज़ें पेन डाउन करनी है आपके नोटबुक में मेरे साथ साथ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज कलेक्टिव नाउन। नाउ व्हेन पीपल से अबाउट कलेक्टिव नाउन, इट इज वेरी सिंपल। एज जैसे मटेरियल नाउन खुद कहता है कि मटेरियल के नाम मतलब मैं, वैसे ही कलेक्शन जहाँ पे होगा, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ओके, कलेक्शन ऑफ प्लेसेस, तो जो भी है वो हम सब इंक्लूड करेंगे कलेक्टिव नाउन के अंदर। इसीलिए अगर उनके एग्जाम्पल्स देखने हैं तो वी कैन से अबाउट दिस कि कलेक्शन ऑफ पीपल, तो स्कूल जहाँ पे हम पढ़ते हैं वो क्या है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल। क्लासरूम, दैट इज कलेक्शन ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स, एज वेल एज कलेक्शन ऑफ बेंचेस। सो वो चीज़ों का भी एक कलेक्शन है, इसलिए क्लासरूम को क्लासरूम कलेक्टिव नाउन है ऐसा कहा जाएगा, बराबर। Now we are going with examples very simply. Proper noun we are taking very in a gradual manner. सबसे पहले common noun जैसे कि
So human, boy and goat, we are taking the examples for common noun. ह्यूमन कोई भी हो सकता है, पर पर्टिकुलरली अगर मैंने बोला अरे देखो आदमी जा रहा है, फिर कोई मुझे आके बोलेगा कि वो आदमी नहीं भैया, वो हमारे शंकर चाचा है, तो शंकर चाचा बोलने के बाद वी जस्ट गेट क्लियर आइडिया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रॉपर, कि उसको कुछ भी मत बोलो भाई, उसको प्रॉपर नाम दिया गया है या रखा गया है इन एनी वे। इसीलिए वी कैन से लाइक ह्यूमन के लिए ग्रेजुअली अगर देखा जाए तो आ जाएगा शंकर। बॉय है, जब मैं बॉय कहूंगा तो सारे लोग ध्यान में आएंगे, कॉमन चीज हो जाएगी, इसीलिए कॉमन नाउन। पर अगर मैं किसी का नाम लेता हूं जैसे कि चेतन, ये बहुत सिंपल सा हो जाता है। उसके बाद में है गोट, हमारे वहां पे और फॉरेन में भी ये आदतें हैं कि एनिमल्स को नाम दिए जाते हैं, इसलिए अगर मैं कोई गोट कहूं और उसको अगर मुझे बहुत प्यार से कुछ कहना है तो मैंने कहा एंजल। ओके, सो ह्यूमन, बॉय, गोट जो कॉमन नाउन है उनके प्रॉपर नाउन भी हो सकते हैं और हो ही सकते हैं, इसीलिए शंकर, चेतन और एंजल, बराबर। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। आप शब्दों के साथ चले जाएंगे, यू विल बी वेरी इजीली गेटिंग दिस। ओके, आगे है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के अंदर हमने जैसे बोला कि हमको इनके बारे में सोचना है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचना है, मिनरल्स के बारे में सोचना है, तो वेरी सिंपली वी कैन से अबाउट लाइक, isn't it a material? Definitely it is, like sugar, like kettle of chai. Okay, so milk, sugar, kettle, definitely these are material now, just because we know these are the materials, very simply. Okay, और हम इसके पहले बहुत सारा बात भी कर चुके हैं उसके ऊपर, इसीलिए we will be just going for abstract noun. Abstract noun जैसे मैंने बोला कि आपको फीलिंग्स के बारे में सब कुछ बोलना है, तो I can say about this anger, गुस्सा। गुस्सा होना वर्ब है, बराबर। गुस्सा नाउन है और गुस्सेल ये एडजेक्टिव है। उसी तरह से इवन इन इंग्लिश वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो आगे पीछे उनके प्रीफिक्स है या सफिक्स लगेंगे तो वो बदल जाएंगे, इसीलिए एंगर ये नाउन बनता है, पर एंग्री वो बनेगा एडजेक्टिव। कैसे क्या, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे उसके बारे में हम जरूर सोचेंगे। इसलिए एंगर है, लव है, इसका उपयोग करना आना चाहिए। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर लव है तो आई लव माई मॉम, तो लव को अंडरलाइन करके नाउन करेंगे क्या? नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज कि इट इज कमिंग इन द प्लेस ऑफ वर्ब। इसीलिए द लव ऑफ मदर इज वेरी गुड, द लव ऑफ फादर इज फैसिनेटिंग, वी कैन से अबाउट दैट। तो पापा का प्यार, यहाँ पे प्यार एज अ नाउन यूज हुआ, इसीलिए नाउन क्या, ये जब दिमाग में बैठेगा तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा टॉर्चर नहीं करती है, बराबर। इसीलिए हमने वो समझ लिया अच्छी तरह से, इसीलिए अब इनके साथ हम बहुत ही सिंपल वे से जा रहे हैं, बराबर। इनको अब सेंटेंस में यूज़ करना वो सब कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर टाइम चला जाएगा, एंड दैट वी डोंट वांट, जस्ट बिकॉज कि जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हम वो देख रहे हैं, बराबर। नाउ एंगर, लव, ऑनेस्टी, वी कैन से, हमने कई दफे वो थॉट भी कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हाउ कुड इट बी, बट लेट इट बी। सो ऑनेस्टी है, प्रामाणिकपणा, ज्याला आपण मराठी लाइक दैट। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, lastly but not leastly is collective noun. As I told you, collection of things, collection of people, collection of objects, anything, but the collection is very important. इसीलिए bank, collection of computers, yeah, it is there, collection of benches is there, collection of treasuries are there, collection of people are there. So in every way we can say bank is a collective noun. Same thing happens with the school, okay, and same thing that goes with herd, that means
झुमका, बहुत जैसे कि गोट्स का होता है, शिप्स का होता है, गायों का होता है, बराबर। इसीलिए बैंक, स्कूल एंड हर्ड। अगेन आई एम सेइंग गो विद दिस, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव, इनको दिमाग में रखना है, इनको पिट पैट करना नहीं है। जिनको नहीं हो रहा है वो करे, लेकिन फोकस ऑन दिस जस्ट बिकॉज के ये सब चीज़ें अगर यहाँ पे और यहाँ पे रहेगी तो आपको पिट पैट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार याद रखना है हमें कि 5 है, 6 है। कई दफ़े लोग आते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को लेके, बट आई थिंक दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। काउंटेबल और अनकाउंटेबल आप गिन नहीं सकते क्या? इसीलिए हमने उन दोनों को इसमें रखा है, मटेरियल नाउन के अंदर। इसीलिए आप शुगर बोलोगे तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया भाई साहब, आप अगर बोलोगे गोल्ड तो हो गया काउंटेबल नाउन। तो उस झंझट में ना पड़े बिना, पर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे वो तो आया ही नहीं, ये क्या चल क्या रहा है। इसीलिए दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। What is important to understand, the basic thing of it, the terminology of particular thing, and that is what we are doing for noun, and that is why we have taken only 5 types. Okay, we are just gonna make this, क्योंकि कैसे है हम हर टाइप को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। और जो हमारे दिमाग में है कि हमको लैंग्वेज पढ़ना है, हमें बर्डन लेना नहीं है, इसीलिए वी आर जस्ट मेकिंग इट वेरी सिंपल and enjoyable. So I think you got the idea. Definitely there are some examples, definitely I can understand कि इनको अगर सेंटेंस में लेते तो, पर उसमें we will be wasting our time. That is why we are just making this. So for noun, again I am saying, again I am repeating, if you haven't checked it before, if you haven't written it before, go for it. Place, person and object. It is the name of place, person, object. हम बार बार ये सब चीज़ें दोहरा रहे हैं। कोई जगह, कोई व्यक्ति या प्राणी या फिर कोई वस्तु, उसके साथ हमारी काल्पनिक बातों को भी हमको नाउन इस शब्द की जाति में ऐड करना चाहिए। इमेजिनेटिव टर्म्स भी, काल्पनिक कल्पनाएं। इसीलिए अब इसके साथ थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं। We will be hitting the next pronoun very soon.